بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، آپ پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ارد گرد جو واقعات ہو رہے ہیں، پوری دنیا ان واقعات سے بھی متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ مشرق کے بعید کا قصہ نہیں ہے۔ مشرق وسطیٰ کے بارے میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں، ہم اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، بلکہ اب تو ساری دنیا کے یہ واقعات ہو رہے ہیں، ہر ملک ان سے متاثر ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ٹرمپ افغانستان سے وہ باغان کا اڈا مانگ رہا ہے۔ وہ اڈا بھی نام اڈے کا ہے، 25-30 میل کا شہر ہے، بنایا ہوا ہے، امریکہ نے ہے، مدد اس میں ہم نے کی تھی، ہمیں تو کچھ ملا نہ۔ اب سنا ہے کہ جو طالبان ہیں ان سے کہیں بات چیت چل رہی ہے، وہ $80 کروڑ مہینے کا کرائے پہ باغران کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سنا ہے طالبان $1 ارب مہینے کا مانگ رہے ہیں۔ اب جب حالات اس حد تک پہنچی ہوئی ہے، بظاہر ہمارے جو طالبان ہیں وہ کہتے ہیں ہم کسی ایک سپاہی بھی ہماری سرزمین پہ نہیں رہ سکتا۔ پھر یہ نہیں کہتے کہ ہماری مرضی کے مطابق تو رہ سکتا ہے، پر اب وہاں پہ خوست کے صوبے کے اندر یہ شہر ہے، خوست کے ساتھ دور تک پاکستان کے ساتھ افغانستان، ویسے بھی سرحد لمبی ہے ہمارے ساتھ، لیکن یہ صرف جو خوست صوبہ ہے اس کی سرحدیں ہم سے ملتی ہیں، اور یہ بڑے آرام سے لوگ یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں، وہاں سے پاکستان آ سکتے ہیں، ان کو روکنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو امریکہ اس کے ارد گرد کے علاقوں کے اوپر بھی ہم جو رضاکار ہیں، ہم نے تیسری وہ عالمی جنگ چھڑ جائے، تو بڑی عالمی طاقتوں کو
तालिबान लड़े हैं, यानी पठानों ने उन्हें अपने साहिल पे पैर नहीं जमाने दिए और उन्होंने खुद को तबाह कर लिया है। लेकिन एक बात पे वो कायम रहे हैं कि कोई हमारी सरजमीन पे हमसे लड़ के या हमें डिप्लोमेसी के जरिए फतह करे, ये तो हमारी तारीख के सफ़े पे लिखा ही है। अब उनको फिर हम सहूलतें फराम करनी हमने शुरू कर दी है। हमारे पाकिस्तानी पन्नू की छावनी और इसके इर्द गिर्द भी पूरे शुमाली वजीरिस्तान को और अब तो जनूबी वजीरिस्तान तक भी वो आ चुके हैं, बल्कि जनूब में यहाँ तक कंट्रोल है तालिबान का कि अफवाहें ये हैं कि अली अमीन को भी अपने घर जाने के लिए उनसे इजाजत लेनी पड़ती है। अब ये तो है वहाँ पे मौजूदा सूरत हाल। अब जो अमेरिका आएगा, $1 अरब दे के आए अफगानिस्तान को, जैसे भी वो कहता है हम चीन के लिए आ रहे हैं। एटमी उनके अड्डों को जो 20 मिनट के फासले पे है, इसलिए वहां हम अपना कंट्रोल चाहते हैं। हम जो अपनी जमीन पहले ही दे रहे हैं अमेरिका को, तो वो क्या करेगा, हमारी सारी जो एयरफोर्स है, जो उनकी एक्टिविटीज हैं, 35FJ हो या जितनी लेटेस्ट चीजें हैं, वो हैं जिला अटक के में। अब ये अमेरिका वहां होगा तो हमारी एटम पर भी उसका वो कंट्रोल हो जाएगा। जो 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 ट्रम्प पूरे गजा को हजम करना चाहता है, वो इसराइल का भी कंट्रोल नहीं चाहता। वो कहता है कि कंट्रोल हमें दे दें, कल से जंग खत्म हो जाएगी, सीज फायर भी हो जाएगी। सिर्फ ये है कि कंट्रोल हमें दे दें, हम उसको बहुत बड़ी दुनिया की तफरीगाह बनाएंगे, कंट्रोल हमारा होगा। अब ये बताए वो गजा क्या होगा। इस हालात के अंदर जो चाइना के साथ भी लड़ना चाहता है हमारे सॉइल से, जो रूस से भी लड़ना चाहता है पाकिस्तान के सरजमीन से, और ये सारा बिल है, खाना है जो हमारे आसिम मुनीर साहब को वो नाश्ता, उसका बिल वो यहाँ मांग रहे हैं। यही नहीं बल्कि वो ईरान की सरहदों के साथ सारी मादनियात हम उनको दे चुके हैं। प्लाटीनियम हो
یا وہاں پہ لوہا ہو یا سونا ہو، جو کچھ ہو وہ معاہدے ہم اس سے کر رہے ہیں۔ اب جناب چائنا کو ادھر ہم جانے نہیں دے رہے، گوادر جو بنایا ہے چائنا نے، اس کا کنٹرول بھی ہم چھین کے امریکہ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو پھر چیز جو چائنا ہے وہ کوئی معصوم بچہ ہے؟ ہمارا ملک امریکہ کے آگے بک چکا ہے، بیچ دیے انہوں نے، کچھ لیڈرشپ ہے نہیں نا، پالیسی نہیں کی ہے، پاکستان کے لوگوں کو کچھ نہیں ملا، وہاں بھوک کھڑی ہے۔ ہم نے سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ کر لیا، تو میں کل بھی ایک دوست سے تھوڑا مذاق کر رہا تھا، میں نے کہا یار، ابھی نون کے دوست تھے، تو میں نے کہا یار ہمیں وہاں کا شہریت تو دلا دو سعودی عرب کی، کیونکہ آپ کا تو معاہدہ میاں شہباز شریف نے کر دیا ہے۔ ہمیں کیا ملا؟ ہم کعبے کے محافظ بن گئے، اچھا ہوا، ہم مدینہ کے چوکیدارہ کریں گے، یہ اعزاز ہے ہمارے لیے۔ وہ ایسی جگہ میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ قربان کر دیں اس سرزمین کے اوپر، ہمارے بچے قربان کر دیں اس سرزمین کے اوپر، لیکن ہماری مذہبی بلیک میلنگ تو نہ کرو۔ آپ اس میں سے حالات کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا، اور پھر وہ معاہدہ ہم سے کرنے سے پہلے سعودی عرب نے امریکہ سے بھی پوچھا ہے۔ اب یہ تو ایک صورتحال ہے۔ دوسری یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب مجھے کہتے ہیں میں ان کے بارے میں ذکر نہ کروں، میں نہیں کروں گا، لیکن جب ان کے جو کرائے کے ورکر ہیں وہ مسلم لیگی ہو نہیں سکتے، وہ ان کے سوشل میڈیا کے ریکروٹڈ جو ان کے، وہ جب انتہا کر دیتے ہیں مجھے گالیاں دیتے ہوئے، تو میں چند باتیں جو حقیقت میں ہو چکی ہیں اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے نہیں، یہ تو آپ نواز شریف صاحب کے پاس بارے میں کیوں کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا تھا یہ لندن گئے ہیں تاکہ وہ اس ایکسٹینشن پہ دستخط کرنے سے وہ ہمارے عاصم منیر صاحب کو اعتراض کر سکے، رکاوٹ ڈال سکے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب سوئٹزرلینڈ میں ہیں، اب سوئٹزرلینڈ میں علاج کے سلسلے میں وہ وہاں جا کے آرام فرما ہے، بیماریوں کو تو کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن تو میاں نواز شریف اللہ انہیں زندہ رکھے، ہماری عمر بھی لگ جائے،
मियां नवाज शरीफ को। अगर उस उम्र की पाकिस्तान को जरूरत है तो हमारी उम्र भी लग जाए। लेकिन बात ये है कि ये उनके एक लुकन मिट्टी होती है, लुकन मिट्टी, वो सिर्फ लुकन मिट्टी खेल रहे हैं, वो छुप रहे हैं, वो तलाश कर रहे हैं। उस लुकन मिट्टी का खेल तो खत्म होना है ना। चंद दिन रह गए एक्सटेंशन के अंदर। अच्छा, ये सारे वैसे तो ये तो मौजूद जिन पर मैं बात कर रहा हूँ, ज़रूरी है कि इनको आपको उसके बारे में मैं आपके इल्म में ला सकूँ, आपकी अवेयरनेस के लिए ये बातें करूँ। लेकिन हकीकत ये है इनकी कोई हैसियत भी नहीं रहेगी जब वो फर्ज करें नहीं भी देते हो वो एक्सटेंशन। वो शहबाज शरीफ को फारिग कर देगा, वो याहिया खान की तरह या परवेज मुशर्रफ की तरह कभी चीफ एग्जीक्यूटिव, कभी सदर बाद में। तो ये बातें वो उनके लिए करना हमारी फौज वालों के लिए मुश्किल भी नहीं है। फिर हम ही कहते हैं कि जब जो फौजी हैं वो शहीद हो रहे हैं, भाई यहाँ हम अपनी फौज से प्यार करते हैं। जिसने अभी इंडिया से जंग जीती है उसके पीछे जज्बा भी था, टेक्नोलॉजी की है अपनी जगह अहमियत है, बहुत अहमियत है। ये पीछे जज्बा भी चाहिए होता है। अभी देखे ना वहाँ गजा में टेक्नोलॉजी, इसराइल दुनिया का नंबर 1, उसके अंदर उसका हसूल, तो उसके मुकाबले पे जो फलस्तीनी है, जो हमास है, उन्होंने उनके 80-90 आदमी पकड़ के किडनैप करके अगवा करके कुछ कहे कैदी बना दिया उन्होंने। और वो वहीं पे गजा शहर की सुरंगों के अंदर है। उधर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मुल्क है, सुरंगें भी वही हैं और ऊपर कंट्रोल इसराइलियों का है। गजा पे पानी ना आने दे, खाना ना आने दे, किसी घर में जाके घुस जाए, पूछे वो क्या टेक्नोलॉजी उनकी। फिर वहां पे वो रोबोट भेजना शुरू किए हुए हैं इसराइल ने कि वो जाके बताएंगे हमारे कहाँ पे कैदी हैं और हम जाके छुड़ा लेंगे या हमारे रोबोट छुड़ा लेंगे। और वो रोबोट हर आने वाली रुकावट को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। मगर मैं जो अर्ज करता था, इसके बावजूद अभी इन 8-10 दिनों में मजीद 50 इसराइली फौजी इन्हीं सुरंगों में गुम हो गए हैं। उन्होंने उनको जंगी कैदी बना लिया है, हमास वालों ने, उनका पता ही नहीं चला। देखे ना जितने फिर इनकी जब होता है अपना मुआहदा कि हम 2 जो कैदी छोड़ेंगे, 100-200 कैदी इसराइल हमारे छोड़ेगा, तो 2 हों या 10 हों, जब वो आते हैं तो पब्लिक में लेके आते हैं ना उनको।
हमास वाले पब्लिक के अंदर लेके आते हैं, जुलूस निकाल के जाते हैं, इनको पता ही नहीं लगता कि ये कहां से लेके आ रहे हैं। उस शहर पर तो कंट्रोल जो है इसराइल का है। आप अंदाजा करें कि टेक्नोलॉजी कहां गई। फिर दूसरा दौर शुरू हो जाता है। अब अमेरिका कहता है कि हमारे आदमी छोड़ो, क्योंकि वो जो पहले नवे उन्होंने पकड़े थे, वो एक मेला था किसी शहर में इसराइल के अंदर। इंटरनेशनल हैसियत तो उसकी इतनी थी कि वो वहां से अपना ऑस्ट्रेलियन भी हैं वो कैदी, वहां वो जापानी भी हैं वो कैदी, अमेरिकन भी हैं वो कैदी, सारे के सारे हैं। वो पकड़ के ले गए। अब कोई सारे मुल्क मिल के एक आदमी आज तक अपना रिहा नहीं करा सके। जिसको उन्होंने चाहा वही रिहा हुआ। और अब तक तो जितने उन कैदियों को उन्होंने छोड़ा, वो ऐसा लग रहा था कि जो वो कैदी नहीं है, बल्कि वो अमेरिका के अंदर जो है या सैन फ्रांसिस्को के अंदर आम जिंदगी गुजार के और रहा हो के आ रहे हैं। ना उनके कपड़ों से लगता है, ना उनके ये बात, सब कुछ उनको वहां प्रोवाइड कर रहे हैं। बल्कि वहां से रिहा होने वाली खवातीन ने, कैदियों ने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि उन्होंने कहा हम तो मुसलमान होना चाहते हैं। इतना अच्छा रवैया था उनका कैदियों के साथ। बहरहाल ये जज्बा भी था जो हमारी फौजों ने ये जंग जीती इंडिया से। जज्बा भी था, टेक्नोलॉजी भी थी। लेकिन अगर हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि आप फौज बने, सियासतदान न बने, आप हमारे ऊपर जो है सियासी जो सूरत हाल है उसके भी आप बन जाते हैं, सदर भी आप बन जाते हैं, वजीर आजम भी आप बन जाते हैं। 40-50-60 साल तक एक ही पॉलिसी है कि फौज हम पे डोमिनेट करेगी, वो हमारी मैशत को चलाएगी, हमें हुक्म करेगी। दुकान तो हमारी आके नहीं खोलती ना, खोली फौज वालों ने। वह पॉलिसियां ऐसे देती हैं कि पाकिस्तान आज भी भूखों से मर रहा है। दुनिया के गरीब 3 मुल्कों में हम खड़े हैं, गुर्बत की लकीर के नीचे से गरीब है। गुर्बत की लकीर फलानी छोड़ो यार, गरीब हैं हम सारे। कि चंद जो लुटेरे हैं, निजाम के वो लुटेरे हैं, उसकी वजह से उनको ठेके भी मिल जाते हैं, उनको काम भी मिल जाते हैं, उनको नौकरी भी मिल जाती है। वो हमारी जो है सिविल ब्यूरोक्रेसी भी हो जाती है, वो मिलिट्री भी हो जाती है, वो खा रहे हैं, वो तो लूट रहे मजे में है। उनके लिए तो पाकिस्तान गरीब नहीं है। गरीब तो उसके लिए है जिसके बच्चे रोटी लेने के लिए जाते हैं और पानी में डूब के मर जाते हैं। कभी सैलाब वो भी आते हैं तो गरीबों को डुबोते हैं। जंग आती है तो वो भी अब सिपाहियों को हम रोज देख रहे हैं।